محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جب حیا ہی نہیں تو ساری برائیاں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک محبوب ہے جو زیادہ اخلاق والا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ 214 شادی مبارک و کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم، ٹیارس انشورنس کے تحت 2 لاکھ مالیت کے چیکس۔ حلقہ اسمبلی میں مختلف مندر کی تعمیر و سڑکوں کی تعمیر کے لیے تقریباً 52 لاکھ سے زیادہ مالیت کے چیکس استفادہ کنندگان میں بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد نے کیے تقسیم۔ سی ایم کی CR کی فلاحی اسکیمات و ضلع صدر و PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی کارکردگی سے متاثر ہوتا مانک بھنڈار کے BJP قائدین نے کی TRS میں شمولیت حاصل۔ مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد انچارج و حیدرآباد MLA احمد بن عبداللہ بلالہ کا دورہ، ضلع نظام آباد، آرمور، بودھن و نظام آباد کے جماعت تہم کے طلباء میں کی بکس کی تقسیم۔ وہ ڈویژن نمبر 31 میں کارپوریٹر دفتر کا کیا آغاز، وہ کوآپریشن ممبر شہباز احمد کی ہاسپٹل پہنچ کر کی عیادت۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی کا دورہ، 5 پڑاؤ و مختلف ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ غیر قانونی طور پر لکی ڈرا کے نام پر عوام کو لوٹنے والے افراد پر CP KR ناگراجو کی ہدایت پر دھاوا، کئی افراد کو کیا گیا گرفتار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 214 شادی مبارک و کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم، TRS انشورنس کے تحت 2 لاکھ مالیت کے چیک سے حلقہ اسمبلی میں مختلف مندر کی تعمیر و سڑکوں کی تعمیر کے لیے تقریباً 52 لاکھ سے زیادہ مالیت کے چیک سے استفادہ کنندگان میں بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد نے کیے تقسیم۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد، جو اپنی دریا دلی و سماجی خدمت و اپنے غیر جانبداری کے لیے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جانے جاتے ہیں، اور آج انہوں نے اپنے بودھن دورے کے دوران مختلف فلاحی کام انجام دیے، جن میں بودھن مستقل، نوی پیٹ، رینجل، ایڈپلی، سہارنپور و دیگر علاقوں سے وابستہ عوام میں 3 کروڑ مالیت کے شادی مبارک وہ کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اسی طرح TRS پارٹی انشورنس کے تحت ایک مرحوم TRS ممبر کے افراد خاندان کو 2 لاکھ روپیوں کا چیک حوالے کیا، اور اپنی غیر جانبداری کا ثبوت دیتے ہوئے حلقہ اسمبلی کے گاؤں ساٹاپور میں زیر تعمیر رام مندر کی تعمیر کے لیے ان کے ذاتی خرچ سے 2 لاکھ روپیوں کا عطیہ دیا، جس پر مندر انتظامیہ نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں رسید حوالے کیا اور ان کی دریا دلی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طرز پر ان کی کاوشوں کے سبب یامچا گاؤں میں موجود مندر وٹھلیشور مندر کے راستے کو مستقل طور پر تیار کرنے کے لیے 50 لاکھ کا فنڈز منظور کیا گیا ہے، جس کے مطابق دستاویزات مندر ذمہ داروں، سرپنچ، ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے حوالے کیا گیا۔ اسی طرح ان کے ہاتھوں CMRF کے چیکس بھی عوام کے حوالے کیے گئے، جس پر استفادہ کنندگان و سیاسی قائدین کی جانب سے بے حد خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ساٹاپور سرپنچ وقار پٹیل و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد انچارج و MLA ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ نے دواخانے پہنچ کر کوآپریشن ممبر شہباز احمد کی عیادت۔ گزشتہ روز مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کی جانب سے صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی پر اتر پردیش میں پیش آئے قاتلانہ حملے کے خلاف شہر کے مرکزی چوراہا نہرو پارک پر احتجاج درج کیا، جس میں پولیس کے ساتھ مجلسی قائدین کی دھکا مکی میں ٹاؤن معتمد شہباز احمد کی ہاتھ آگ سے جھلس گئے اور ان کو دواخانے منتقل کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں حیدرآباد ملک پیٹ رکن اسمبلی و انچارج نظام آباد جناب احمد بن عبداللہ بلالہ نے دواخانے پہنچتے ہوئے ٹاؤن معتمد شہباز احمد کی عیادت کی اور تمام معاملے کی تفصیلات حاصل کی۔ بتا دیں کہ ٹاؤن معتمد شہباز احمد مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سرگرم قائد ہے۔ ان کے ساتھ پیش آئے حادثے سے شہر میں افسوس کی لہر پائی جا رہی ہے اور ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر MLA احمد بلالہ کے ساتھ ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع صدر مجلس محمد فہیم، صدر سٹی مجلس شکیل احمد فاضل کے علاوہ تمامی مجلسی کارپوریٹرز، نوجوان کارکن اور قائدین موجود تھے۔
عوام کے مسائل کے حل و علاقے کی ترقی کے لیے ڈویژن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد منور علی کا ایک اور اقدام، ڈویژن میں کیا دفتر کا قیام۔ مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد انچارج MLA احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں عمل میں لایا۔ دفتر کا افتتاح عوام نے کیا۔ پھولوں کی بارش و پٹاخوں کی گونج میں ان کا ڈویژن میں خیر مقدم۔ ہر دل عزیز مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ڈویژن نمبر 31 محمد منور علی کی جانب سے عوامی مسائل کی سماعت و حل کے لیے ان کے ڈویژن میں دفتر کا قیام عمل میں لایا، جس کا افتتاح آج مجلس اتحاد المسلمین رکن اسمبلی ملک پیٹ حیدرآباد و نظام آباد ضلع انچارج احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ان کے استقبال کرنے کے لیے علاقے کی تمام خواتین نے ڈویژن کی اہم شاہراہ بودن روڈ سے داخلے پر پھولوں کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ اسی طرح نوجوانوں کی جانب سے بائک ریلی و پٹاخوں کی گونج میں دفتر تک لایا گیا، جہاں عوام کے ایک ہجوم نے پھولوں کی بارش کے ساتھ ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقامی مساجد کی کمیٹیوں کے صدور و اراکین نے وہ علاقے کے ذمہ دار افراد نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کے مطابق خوشی کا اظہار کیا اور مجلسی کارپوریٹر محمد منور علی کی بے لوث قیادت پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور ان کی شال پوشی گل پوشی کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع صدر MA فہیم، شہری صدر و بلدیہ فلور لیڈر شکیل فاضل، مجلسی کارپوریٹر محمد علی باغبان، محمد حسین، اعجاز حسین، ماجد صدیقی، MA سلیم، سرفراز خان، محمد عبدالغفور مقیم، میر ارشاد علی سمیر، ریاض احمد، سید رفیع الدین کے علاوہ علاقے کے نوجوان جاوید، شیخ ظفر، سہیل چاوش، علیم پیا، شمشو، عمران، سمیر، بلال، صدام قریشی، جاوید، فرنیچر، غفار، آصف، سنیتا، سپنا، اسلم و دیگر موجود۔ The powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. NPL کے فائنل میں عوام کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے بھارت فلاور ایس کے سپر کنگ کی ہمت افزائی کرنے کا بانی بھارت فلاور کی اپیل۔ شہر نظام آباد میں گزشتہ کئی دنوں سے نظام آباد پریمیئر لیگ کے تحت کرکٹ مقابلہ جات جاری ہے اور جس کا آخری مقابلہ بروز اتوار 5 فروری دوپہر 12 بجے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان مقابلوں میں کئی ٹیموں نے بہترین مظاہرہ کیا، لیکن ان میں سے بھارت فلاور ایس کی سپر کنگ کے کھلاڑیوں نے کافی بہترین مقابلہ کرتے ہوئے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے اور عوام کا دل جیت لیا۔ اس ٹیم کے کیپٹن وکرم نائک ہے اور وائس کیپٹن انکت ریڈی مانس ہے، جو ایک رینج کھلاڑی ہے اور ان کی قیادت میں یہ ٹیم متحد ہو کر ایک افراد خاندان کی طرح کھیل رہی ہیں، جس کے سبب انہوں نے ابھی تک کے مقابلوں میں شاندار کامیابی حاصل کی اور ان مقابلوں میں سب سے زیادہ رن اور ایک ساتھ 3 وکٹ حاصل کرنے کا ریکارڈ بھی انہی کے نام ہے اور ان کا آخری مقابلہ 4 اسٹار کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر بانی بھارت فلاور شیخ سلیم و ان کے فرزند شیخ غوث، شیخ شریف، شیخ واحد نے عوام سے اپیل کی کہ وہ فائنل میچ کے موقع پر کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کرنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی جانب سے فراہم کردہ اسکیمات سے متاثر ہو کر مانک بھنڈار سے وابستہ BJP کے قائدین نے PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA و ضلعی صدر جیون ریڈی کے ہاتھوں TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی صدر جیون ریڈی کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر مانک بھنڈار سے تعلق رکھنے والے BJP سے وابستہ موضع کے صدر تومو ومشی، لکشمی نارائنا، سائی بابا گوڑ، گنگا دھر سوامی TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر MLA جیون ریڈی نے پارٹی کھنڈوا پہناتے ہوئے پرزور استقبال کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والی منفرد اسکیمات سے تمام طبقات کو راست طور پر فائدہ پہنچ
पहुंचाने के बाईस रियासती तेलंगाना में मुखिम अव्वाम तेलंगाना हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी मास्टर प्रभाकर, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता मौजे के सदर महेश, एससी सेल सदर जी स्वामी, गौस पाशा व दीगर ने शिरकत की। माहीगिरों की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत 100% सब्सिडी के तहत मुफ्त छोटे मछलियों की फराहमी अमल में लाने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा हल्के में डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी के हमरा 4 करोड़ रुपए मालियती रकम से दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, जिले एसपी श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस पार्टी के कायदीन पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से माहीगिरों की तरक्की के लिए मुफ्त छोटे मछलियों की फराहमी अमल में लाने के अलावा मार्केट में मछलियों की फरोख्त के लिए सहूलियात की फराहमी के मकसद के तहत 2 पहियों 4 पहियों की सवारियों की दस्तियाबी की गई है और रियासती हुकूमत के जानिब से मुतारिफ करदा मुतअद्दिद स्कीमात की कामयाब अमलावरी के साथ तमाम तबकात की तरक्की के लिए कई राह हमवार होने का इजहार करते हुए कहा कि माहीगिरों का मछली पकड़ते हुए अचानक इंतकाल होने की सूरत में इनके अफराद खानदान की हिफाजत के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 4 लाख और बीमा कंपनी की तरफ से 6 लाख अदा किए जा रहे हैं। इसी तरह से माहीगिरों की मार्केट में मछलियां फरोख्त करने के लिए मंडल के मुकाम पर कई मराकिज का क़याम अमल में लाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार किया। 40 రూపాయలకి ఇప్పటికి అమ్ముతున్నారు। ఇప్పటికి కొన్ని గ్రామాలలో నేను కోనాపూర్కి వస్తున్నా, పైడిమల కాడ సిద్ధాపూర్ కాడ పెళ్లి ఉంటే పెళ్లి చేసుకుని వస్తున్నా, కట్ట మీద కొంత భోజనం చేస్తారు 50 మంది, ఓ 14 ఏళ్ళ పోర దొరికిందా అని పిలిచిన, ఏ ఊరు అన్న, కోనపూర్ సార్ నది, నన్ను గుర్తుపట్టేవారన్నా, మా ఎమ్మెల్యే సాబు నువ్వు ఎట్లా గుర్తుపట్టావు? మరి గాలి తింటుండేవారా, గాలి ఎక్కడో కొత్త మొక్కలు కనబడుతున్నాయి, మన లెక్క మన దిక్కునులు కాదు కదా అన్న. వాళ్ళు ఎక్కడ సార్ అది బీహార్ అట సార్, వాళ్ళది బీహార్. మరి బీహార్ గిడికెదిగా చేస్తే ఏం చేస్తుర్రా? చేపలు పడుతున్నాం సార్, వాళ్ళతోటి పట్టిస్తున్నాం సార్. మరి ఎవరికి అమ్ముతున్నారా? ఓ ఉసురసులు దొడ్డు దొర ఆయనకు అమ్ముతున్నాం. ఏం ధరకు అమ్ముతున్నారా? ఉన్న చెప్పిండు 50 రూపాయలకు అమ్ముతున్నాం. ఇక మళ్ళీ తిట్టి మళ్ళీ 100 రూపాయలకు తక్కువ ఉంటే మాత్రం జైలు పంపిస్తా చెప్పిన విధానం మీరు అమలు చేసినట్టయితే మీరు బాగుపడతారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి స్కీము మీకు ఉపయోగం. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमले की शदीद मजम्मत, जमीयतुलमा निजामाबाद का बयान। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर मुबीना हमले की शदीद मजम्मत, जमीयतुलमा निजामाबाद का बयान। सदर जमीयतुलमा हाफिज लई खान साहब और जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा मौलाना गुलाम रसूल खासवी साहब ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब पर किया गया हालिया हमला मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। जमीयतुलमा इस हमले की शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत यूपी से मुतालबा करती है कि हमलावरों को सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए और इस साजिश के पस पर्दा हक़ाइक़ की अदालती तहक़ीक़ात के जरिए इंक्वायरी करवाई जाए। जमीयतुलमा दुआ गो कि अल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी साहब को सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और दुश्मनों की साजिशों से भरपूर हिफाजत फरमाए। इस मजम्मती बयान के मौके पर हाफिज असगर साहब, हाफिज वसीम NRI, मुफ्ती इब्राहिम खान साहब, मौलाना तलहा साहब, मुफ्ती शफी साहब, मौलाना हाशिम बेग, हाफिज हकीम, हाफिज सिराज, हाफिज जाकिर, हाफिज अकबर, हाफिज अशरफ, हाफिज अहमद, हाफिज वसीम, हाफिज शहाबुद्दीन व दीगर अरकान जमात मौजूद थे। जमीयतुल कुरैश कमेटी भैंसे के सदर के लिए अजीज अहमद कुरैशी मुंतखब। निजामाबाद में जमीयतुल कुरैश भैंसा कमेटी की सदारती इंतखाबात को लेकर एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती सदर व हाई कोर्ट एडवोकेट फहीमुद्दीन कुरैशी ने शिरकत की। इस मौके पर भैंसे के अजीज अहमद कुरैशी को जमीयतुल कुरैश भैंसे की सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। इस पर अजीज अहमद कुरैशी ने बहैसियत सदर मुंतखब करने पर रियासती ज़िले ज़िम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। सदारत के ओहदे पर फाइज किए जाने की इत्तला के साथ ही रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब की जानिब से अजीज अहमद कुरैशी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस तकरीब में निजामाबाद जिले सदर रफीउद्दीन कुरैशी, निजामाबाद टाउन सदर मुजीबुद्दीन कुरैशी, अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद थे। जिसमें स्लॉटर हाउसेस को मॉडर्नाइज करना, दुकानों में जो लाइसेंस है उसको जो तकलीफें नॉर्थ इंडिया में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो तकलीफें नहीं है, मगर नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और कर्नाटक में भी जो तकलीफें हैं उसके लिए और ये कमेटी ज़बरदस्त तरीके से
लड़ाई लड़ रही है, जितने जनसंघ ग्रुप है उन तमाम से मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया जनरल पूरे सेक्शन कमेटी की एजुकेटेड टीम, पूरे काबिल लोग हैं इसमें, पढ़े लिखे लोग और जाबाज हैं, ये बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में कामयाबी अता हो रही है। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। जनेपली के जिले परिषद हाई स्कूल में सरस्वती मुजस्समे की तनसीबी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने की शिरकत। जनेपली के गवर्नमेंट स्कूल में सरस्वती मुजस्समे की तनसीबी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की और बातज़ा इन्होंने जिले परिषद हाई स्कूल में मरम्मत से मुतालिका कामों के लिए 2 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाकर इससे मुतालिका एक मकतूब मुकामी सरपंच व सदर मुदर्रिस को हवाले किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच सबिता, संजीवा राव, मुजस्समे के अतिया कुंदनगान, आर तिरुपति, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन मनोहर राव और दीगर ने शिरकत की। సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ చాలామంది ఉంటారు, కోటీశ్వర్లు కూడా ఉంటారు, కానీ మనసు ఉండదు. మనసు ఉంటే మార్గాలు ఉంటాయి, మనసు ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. డబ్బు లేకున్నా ఒక కోరిక, ఒక వాంఛ, నేను కూడా సమాజ సేవ చేయాలనే సంకల్పం, దృఢ సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. డబ్బు లేకున్నా కార్యదీక్ష ఉంటే సాధించవచ్చు. बिचकुंदा टीआरएस पार्टी अखलती ख्वाहिश शेख पाशा की हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी, खुसूसी दुआओं का एहतिमाम। हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 810वें उर्स शरीफ के मौके पर बिचकुंदा टीआरएस पार्टी सीनियर अखलती ख्वाहिश शेख पाशा ने अपने दोस्त अहबाब के हमरा अजमेर शरीफ जियारत के लिए रवाना हुए और वहाँ पर मुल्क व रियासत की अमन अमान के लिए खुसूसी दुआओं का एहतिमाम किया। शेख पाशा ने अपने दोस्त अहबाब के साथ दरगाह शरीफ पहुँचकर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर चादर गुल पेश की। इस मौके पर अंसार, बिस्मिल्लाह तहारी होटल मालिक ख्वाजा के अलावा बांसवाड़ा के वफद भी मौजूद थे। एमएलसी के कविता कोरोना से फौरी तौर पर सेहतियाब होने के लिए इनके चाहने वालों ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सोनू व पुरसितारों ने मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता की कोरोना से सेहतियाबी के लिए शहर के रेलवे स्टेशन में वाक़े शक्ति हनुमान मंदिर में यज्ञनाम व हुमूम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन किशन राव, नोडा चेयरमैन प्रभाकर ने शिरकत की। इस मौके पर किशन राव ने कहा कि एमएलसी के कविता कोरोना से फौरी तौर पर सेहतियाब होने के लिए मुतहदा अजला से ताल्लुक रखने वाले अवाम खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने का इजहार किया। నిజామాబాద్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ క్షేమం కోరి యాగం చేయడం జరుగుతున్నది. ఏదైతే మూడవసారి ఈ కరోనా మహమ్మారి రావడము, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం చూస్తున్నాము. దానికి గాను ఈ మధ్యన రాజకీయ నాయకులు కానీ మరి ప్రజలు కానీ అందరికీ ఈ కరోనా మహమ్మారి ఏదో రకంగా జ్వరమో, సర్ది కానీ, దగ్గు కానీ రావడము, మరి వారం రోజులు रेस्ट తీసుకోవడం జరుగుతున్నది। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के हाथों रियासती वंजरी संगम से वाबस्ता साल 9 कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू से रियासती वेजनरी संगम से वाबस्ता मेंबरान ने मुलाकात करते हुए इनसे मुतालिका साल 9 कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रियासत के अवामी नुमाइंदे कालरू गड़म श्रीनिवास, मास्टर श्रीनिवास राव, साबिका रोटरी क्लब प्रेसिडेंट और मायावर सायाराम, कानोकंटी शिवा प्रसाद, पी राजू व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర వంజర్ సంఘం క్యాలెండర్ను ఈరోజు నిజామాబాద్లో కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ నాగరాజ్ గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేయబడినది। ఇట్టి క్యాలెండరు తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుమూలల కులస్తులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది।
ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన క్యాలెండరు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కులస్తులకు అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఇట్టి క్యాలెండర్ ప్రతి సంవత్సరము తయారు చేయబడుతుంది. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मिशन भगीरथा के तहत फ्राहम करदा पानी के मुतालिक महकमे सी राजेंद्र कुमार ने पंचायत अहदेदार व अवामी नुमाइंदों को शोर बेदारी अमल में लाई। महकमे के एससी राजेंद्र कुमार ने इरपल्ली मंडल का दौरा करते हुए मुकामी सरपंच पी साइलू के हमरा जानकमपेट देहात का मुशाहिदा करने के अलावा मिशन भगीरथा स्कीम के तहत रूबे अमल में लाए जाने वाले कामों का जायजा लेते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मिशन भगीरथा के तहत फ्राहम करदा पानी में आयरन कैल्शियम होने के मुताबिक पंचायत के अहदेदारों अवामी नुमाइंदों को शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में RWS DEE मनी नायक AE गबर सिंह सरपंच साइलू नायब सरपंच विजय व दीगर ने शिरकत की। जो అంటే మా రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్లో భాగంగా జాన్కంపేట గ్రామాన్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది, ఎర్పల్లి మండలం. అలాగే మిగిలిన 2 గ్రామాలు ఇంకా నవీపేటలో మండలంలో కూడా ఇంకొక 2 గ్రామాలు విజిట్ చేయడం జరిగింది, అనంతగిరి అండ్ ధర్మారం విలేజ్. అయితే నవీపేటలో మేము అన్ని ఇళ్ళు తిరగడం జరిగింది, చాలా ఇళ్లలో ట్యాప్స్ కూడా చూడడం జరిగింది. ఇంకా కొంచెం ఇక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం చెప్పి మేము సూచనలు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో RWS DEE మున్ని నాయక్, AE గబ్బర్ సింగ్, సర్పంచ్ సాయిలు, ఉప సర్పంచ్ విజయ్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालाना मिलत मॉडल पेपर्स ऑल इन वन की तुलबा व तालिबात में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों तकसीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से SSC उर्दू मीडियम तुलबा व तालिबात में मुफ्त सालाना मिलत मॉडल पेपर्स ऑल इन वन की तकसीमी प्रोग्राम का बसीरा गार्डन में 4 बजे दिन अमल में आया। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज निजामुद्दीन अहमद बलाला ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज निजामुद्दीन पहुंचे और इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए सालाना मिलाद मॉडल पेपर्स ऑल इन वन की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सदर जिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MA फहीम, टाउन सदर शेखिल अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सीनियर कायद अलहाज रफत मोहम्मद खान, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद हारून खान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान, रियाज अहमद, मुस्तहसिन, मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल सलीम, सैयद ज़कीउद्दीन, सैयद रफ़ीउद्दीन, अब्दुल गफूर मुखीम, मिर्जा अफसर बेग के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन, अवाम व तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थे। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली व इंचार्ज निजामुद्दीन अहमद बलाला और दीगर मजलिसी कायदीन ने खिताब किया। आज बिल्कुल यही चल रहा है कि किस तरीके से हमारा खात्मा किया जाए। आप सोचिए, जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर के ऊपर खातेवाना हमला किया जाता है, तो आने वाले दिनों के अंदर हमारी कौम का और हमारी कौम का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क के अंदर। इनसे अगर से हमको आने वाले दिनों के अंदर अगर सही मानों में लड़ना है तो हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी खामियत और हमारा तालीम रहेगा इंशाअल्लाह। तो आज का प्रोग्राम 2 साल के वक़्त के बाद आलिमन का आज यहाँ पे बलाला साहब के हाथों तस्लीम अमल में आ रहा है। ये जो आलिमन बुक है, ये एक बेहतरीन असातिज़ा की निगरानी में तैयार की हुई बुक है। मैं तमाम स्टूडेंट से ख्वाहिश करता हूँ इससे इस्तेफादा हासिल करें। चंद साल पहले हमारी रियासत में जो अव्वल दर्जे में निज़ामाबाद से उर्दू मीडियम तालिबा आई थी आयशा बदर, उसका भी ये कहना था कि वो इस बुक से इस्तेफादा हासिल करते हुए सारी रियासत में अव्वल दर्जे में आई है। 10th क्लास के लिए जो अवैसी साहब के नकालात के नाम से जो बुक बनाई जा रही है उसके तहत किया जा रहा है। ये गुज़िश्ता कई सालों से ये बुक बनाकर तुलबा व तालिबात में तस्लीम किए जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे आने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। और ये जो बुक बनाई जाती है ये बहुत ही माहिरीन के निगरानी में बुक बनाई जाती है। और ख़ुसूसन हमने देखा है गुज़िश्ता 2 साल पहले ये बुक को जो फॉलो करके बच्ची एग्ज़ाम लिखी थी वो स्टेट रैंक फर्स्ट आई। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी को मिसाली उस्ताद अवार्ड मिलने पर मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से तहनीयत।
शहर निजामाबाद के नौजवान आलमुद्दीन बेइंतहा सलाहियतों के मालिक मुख्तलिफ दीनी तंजीमों के जिम्मेदार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जो शहर के मरकजी मदरसा इदारा मजहर उलूम ऑटोनगर में गुज़िश्ता 16 साल शोबे आलिमियत के अहम किताबों के मुदर्रिस से मौसूफ की इस मिसाल खिदमत दीन पर बतौर एजाज़ नांदेड़ की तंजीम खादिमिन उम्मत की जानिब से मिसाली उस्ताद अवार्ड दिया गया है, जिस पर शहर के मुख्तलिफ तंजीमों और अफराद की जानिब से मुबारकबाद व तहनीत का सिलसिला जारी है। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासिमी ने कहा कि मौलाना मौसूफ को हुस्न तालीम व तदरीस पर मिसाल उस्ताद अवार्ड दिया गया, लेकिन हमारा मानना है कि आपकी मिली फलाही व रफाही उम्दा व ज़ीन खिदमात पर मिसाल खिदमात अवार्ड भी दिया जाना चाहिए। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए इखलास व इस्तिकामत की मौलाना के हक में दुआ करते हैं और इस अवार्ड पर हम तमामी अराकीन मानवता पब्लिक सेवा फख्र करते हैं। इस मौके पर हाफिज खलील मौलाना इब्राहिम नदवी हाफिज मोहसिन ने शिरकत करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मौलाना क़य्यूम शाकिर ने अवार्ड के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस एजाज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उलमा फ़ास बिरादरी दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और मदरसा मजहर उलूम से वाबस्ता तमाम अफराद व ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अवार्ड को अपना कोई ज़ाती कमाल नहीं बल्कि असातिज़ा कराम की तालीम व तरबियत का नतीजा और समरा मानता हूँ। अल्लाह पाक हम सब की दीनी व मिली खिदमत को कबूल फरमा कर आखिरत में भी एजाज़ व कराम का मामला फरमाए। खादिमिन उम्मत के तमामी अराकीन बमशमूल आबिद सर और दाऊद सर और ज़िले ज़िम्मेदारान को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर मानवता पब्लिक सेवा के तमाम ही अराकीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि नांदेड़ की जो खादिमीन उम्मत कमेटी है उसकी जानिब से मिसाली उस्ताद अवार्ड मिलने पर उन्होंने मेरी तहनीत की और मुझे शानपोशी की और एजाज़ बख्शा। मैं अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्र अदा करता हूँ और तमाम ही उन दोस्त अहबाब का जिन्होंने मुझे मुबारकबादियाँ दी और मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर ख़ास खादिमीन उम्मत के ज़िम्मेदारान जनाब आबिद सर और इसी तरह जनाब दाऊद सर और इसी तरह हमारे शहर के और ज़िले के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और इस इखलास और इस्तिकामत हम सबको नसीब फरमाए। अरसा पली में गैर कानूनी तौर पर मुनक़िद होने वाले लकी ड्रॉ से मुतालिका मुंतज़िमीन को तहवील में लेने का 6 टाउन एसआई अंजुनलू ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के आना गराजू के अहकामात के मुताबिक 6 टाउन के एसआई अंजुनलू ने पुलिस मुलाजमिन के हमरा शहर के अरसापली पर गैर कानूनी तौर पर लकी ड्रॉ मुनक़िद करने की हासिल करदा इत्तला पर जाए मुकाम पर पहुँच कर धावा करते हुए शेख आसिफ, मुस्तैदपुरा कॉलोनी, सईद मुजाहिद, नोमान, अहमदपुरा कॉलोनी को तहवील में लेने के अलावा इनके पास से नंबर पर मबनी क्वाइन और टेबल कुर्सियों को जब्त करने का इजहार करते हुए बताया कि सुपर टाइम इंटरप्राइजेस के नाम से गैर कानूनी तौर पर लकी ड्रॉ स्कीम को रूबे अमल में लाने पर एफआईआर दर्ज करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 214 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। टीआरएस इंश्योरेंस के तहत 2 लाख मालियत के चेक्स। हल्के असम्बली में मुख्तलिफ मंदिर की तामीर व सड़कों की तामीर के लिए तकरीबन 52 लाख से ज्यादा मालियत के चेक्स। इस्तेफादा कुननगान में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने किए तकसीम। सीएम केसीआर की फलाही स्कीमात व जिले सदर व पीएसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासर होकर मानिक भंडार के बीजेपी कायदे ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद इंचार्ज व हैदराबाद एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का दौरा। जिले निजामाबाद, आरमूर, बोधन व निजामाबाद के जमात तहम के तलबा में किए बुक्स की तकसीम। वो डिवीजन नंबर 31 में कॉर्पोरेटर दफ्तर का किया आगाज। वो कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद की हॉस्पिटल पहुंचकर की इयादत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का दौरा। बांसवाड़ा व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। गैर कानूनी तौर पर लकी ड्रॉ के नाम पर अवाम को लूटने वाले अफराद पर सीपी कियाना गराजू की हिदायत पर धावा। कई अफराद को किया गया गिरफ्तार।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।